हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। India and China relation. There is another world countries. India and China are the two great giant of the Asia, and the besides being to the most is a populous countries. There are also two are most advanced civilization of the world. Historically, several of historians have successfully traced to the culture linkage is dating back to the 2nd century BC. As a result of the Communist of Revolution 1949, China became a people as a republics of the China PRC and under the relationship of Mao Tse-tung. And Nehru is regarded India as a China as the rebel for the leadership of the non-white people of the world. India, on the other hand, tried its best to come close to China. It was the first non-communist country of recognized of communist China in 1949. India is fully supported of China as a claim for a membership in the United Nations. It is also acknowledged China as a claim over to the Prosoma Taiwan and is refused to be a party to the peace and threat to the Japan without China. In the Koreans is a cries to be India is refused to be a brand China as a aggressors when to China intervened on the behalf of the North Korea. And in fact, India is supported China even through their Western bloc, especially USA, and displeased with AIDS. The Nehru as a China policy received for the first jolt in 1950. When the China occupied to Tibet in 1950, Tibet is the most important here the China occupied there in 1950s, and it is important to remember in the context that India has a long-term interest in the Tibet because it was the buffer lining between India and China. India even to enjoy a content especially presence and the Tibet. Therefore, the direct Chinese is a control over Tibet was likely to be a dangerous. This is the India is a security. India is a suggestion for there's a peacefully is a settlement of Tibet problem where a threat as the interference of by their communist Islam's and gradually the Tibetans is a great resistance under China as a yoki and the rose in the revolt in 1959. China is a restless is surprised by the moment and the declare Tibet and the integral part of China. The head of the Tibet is the Dalai Lama, as it took the shelter in the India was that Tibet lost whatever and the autonomy it is still enjoyed. There is a granting of political shelter to be Dalai Lama by the Indian added to the China distrust. China appreciated to India as a natural and mediator role in easing to the Koreans' problem to 1950 to 53. Thus began a period of friendship between the two countries with the sign of there is a Sino-Indians Treaty of the Friendship in 1954. This treaty is put of the seal of approval upon Chinese is a suzerainty over to Tibet. The preamble of the treaty is embodies the famous Panchsheel principle. There is a Panchsheel principle already discussed the previous chapter about which you have studied about the lesson 26. And this agreement initiated a period of relax of relationship marked by the slogan of Hindi China Bhai Bhai. It is interesting to note that at the Bengal Conference 1955, Nehru actively ideas both of China's into the hold of the Afro-Asian solidarity. The next topic is here a boundary as a rupture between India and China. The 1950 as were marked by the boundary is rupture between the India and China, the flashpoint of which the unfortunately causing a bar between the two countries in 1962. China is the first started to claim the large part of Indian territory in the northern East Frontier Agency, means NEFA, Northeast Frontiers Agency. Now the Arunachal Pradesh and Ladakh by publish a map in which this were shown on the included in China. The China is continually extending its border and also constructed as a 110-mile long road across is a Kasai China area. There is a Ladakh area of India in the 1956 to 57.
In 1959, the China put a claim to the some 50 Appa is a square mile of India territory and also denied there is a validity of the MC Mohan line. The MC Mohan line there is the most important. The China is a cover. What do you mean to the MC Mohan line? Mohan line there is the most important. This is a boundary line between India and China, east of Bhutan. It was determined in 1914 at the Conference of Representatives of British India. The Tibet and China, there is Secretary of State of India in the British Cabinet. And Arthur Henry is a MC Mohan represented British India in a conference. By the time the Tibet has been fully integrated into China, it was in a strong position at the Indian-China border with the Chinese troopers and posted all along. Well, there two countries were in the depth over to the MC Mohan line issue. China is launched a massive attack on India as October 1962 in the NEFA as well as the Ladakh sector. After the overrunning large area of India's territory, China announced a unilateral ceasefire after occupying hug and territory of India 200 square mile in the northern eastern sector and 15,000 square mile in Ladakh. A fatal attempt to work out a peaceful settlement between the two countries was made by Sri Lanka. The Colombo proposal failed because China refused to agree on conditions containing them. For long in their year following the war, China-India relations do not show any improvement. In fact, China went out of the way to make friends with Pakistan just to isolate and contain of India. There is the next topic arrive here, a normalization of relation. There is the most important. A third there is the two countries resumed a diplomatic relation in 1976 by the exchanging ambassadors and the effort of the normalization of Sino-India relations received a boost when their Prime Minister Rajiv Gandhi paid a successfully 5-day visit to China in 1988. The two countries pledged to settle their border disputes up through the dialogues. Several high-level visits followed, including visit by the ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 2003, and the two countries agreed to keep the border disputes apart and develop a friendly relation in other fields. Until their border disputes in the resolve, both countries agreed to maintain pace and tranquility of the line of actually control, mean LAC. That is the most important here. One could see a clear shift in the Chinese attitude toward India. The fact that still there is a USSR has amended offense with China. There were no more apprehensions from to the south. Moreover, China as a post-1979 economical transformation demanded big market for its massive productions under economical liberalization. The President Xi Jinping's visit to India in 1996 witnessed a major consolidations of this progress. And this was the first ever visit of China as a head of the state to India. China withdrew support to the Naga and Mizo rebel. Meaningful, they are silent to the state of Sikkim. China is considered a Sikkim state as that of the independent state. And the naturally stand on the Kashmir issue could be seen on positive shift in a Chinese attitude toward to the India. There is nevertheless there are suddenly a very setback in the mutual ties of the two after their nuclear exploration by India during 1998, and this were followed by the sharp Chinese reactions, and is leading to the role of getting to the solution and condemning there is a test in the UN and similar fora and passed. And this test by the China were seemed to the neutralizing on Chinese promise in the region, and but the Chinese poster of the neutrality of during to the Indo-Pak military showdown in Kashmir.
तो कारगिल sector 1999 is expected to the China's inclination to be a toy to the softer and friendly line with their India. In fact, China's refusal to interfere in the conflict of forced Pakistan to cessation of the hostility with India. However, ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee as a 2003 visit to China is a renewed effort in the promotions of close and cordial ties between the two worlds. There is a border agreement has recognized the Nathula Pass in the Sikkim is a border pass, implying that China no more consider Sikkim as on the independent state. Another positive breakthrough was the joint declaration that underlined the need of exposure of framework of the boundary and settlement of political level of bilateral relation. And this is acknowledgement that is a key issue in the resolving the depth of the political. And this is a seen to the Beijing's willingness to give up. It is a policy of declining dialogue. India is a national security advisor and China vice minister has been appointed by the holding the task. The development at the diplomatic and political level has been supplemented by fresh initiatives at the economical level to strengthen a bilateral relation. And the border trade between India and China has crossed $10 billion quickly. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जो कि भारत और उसके पड़ोसी चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चीन के बारे में विचारधारा रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारत और चीन के रिलेशनशिप में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भारत और चीन के बीच जो है उतार चढ़ाव की किस प्रकार जो है सीमाएं की विवाद थी और इसका क्या सलूशन हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर जो कई जो प्रधानमंत्री भारत से जाके चाइना के दौरा किया, उन्होंने क्या इसका जो है नतीजा निकाला और क्या इससे हुआ। तो यही बात यहाँ भारत और चीन रिश्ता का ये जो है पहलू को यहाँ दर्शाता है। कहते हैं भारत और चीन एशिया के दो बड़े विशाल देश हैं। ठीक है, भारत और चीन कई मानने में एक बड़े विशाल देश में से माना जाता है और विशाल जनसंख्या वाले देश होने के साथ ही साथ ये दोनों जो है विश्व के प्राचीनतम सभ्यताएं भी हैं। यानी भारत और चीन कहते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है और इवन कि विश्व में हर जगह पर और कोई ना कोई आपको जो है चीन या भारत के लोग मिल ही जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भारत और चीन एक ही जो है डगर पर खड़े हैं। कहते हैं इतिहासकारों ने दोनों देशों के बीच दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृति संबंध होने से यथेष्ट तथ्य दिए हैं। यानी बहुत से विद्वानों ने यह बात साबित कर दिया है कि भारत चीन के जो संबंध है वो कई मानव सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए हैं। कहते हैं 1949 में साम्यवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इओलोसे तुगो के नेतृत्व में चीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन बन गया था और विश्व के अश्वेत लोगों के नेतृत्व के लिए नेहरू ने भारत के चीन का प्रतिद्वंदी माना था और दूसरी ओर भारत ने चीन के निकट आने की भरसक कोशिश भी किया था और भारत पहला गैर साम्यवादी देश है जिसने 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता भारत ने प्रदान किया था और भारत के वजह से ही संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए चीन के दावे को भारत ने पूर्ण समर्थन किया था। लेकिन आज जब भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनना चाहता है तो चीन की जो है रास्ते का पत्थर बना हुआ है। यानी वो जो है भारत को जो है विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहता है। लेकिन एक रूल भी होती है, अगर 5 सदस्य देशों में से जो सदस्य अस्थायी हैं कोई भी अगर मना कर दे तो उस देश को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है भारत के रास्ते जो है बहुत कठिन जो है चीन बनाता चला जा रहा है। लेकिन जब चीन की सदस्यता की बारी थी तो भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और भारत ने जो है समर्थन भी पेश किया था। इसमें फारसों ताइवान पर भी चीन के दावे की स्वीकृति दी थी। भारत ने चीन के बिना जापान के साथ शांति संधि से इनकार भी कर दिया था और कोरिया संकट में भी भारत ने चीन के हमलावर मानने से इनकार कर दिया था, जबकि चीन ने उत्तरी कोरिया की ओर से हस्तक्षेप भी किया था। वास्तव में भारत ने चीन को पश्चिम देशों के समूह विशेषकर अमेरिका की नाराजगी जाहिर करने के बावजूद भी समर्थन दिया था। कहते हैं भारत ने हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया है चीन के साथ, लेकिन चीन जो है कहते हैं
पीछे से खंजर मारने का काम किया है, तभी जो है इसको अस्थायी सत्ता भारत को नहीं मिल पाई है। नेहरू की चीन नीति को जो 1950 में पहला आघात लगा था, जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार स्थापित कर लिया था, और ये बहुत बड़ी जो थी घात थी चीन की तरफ से। ठीक है, इस संबंध में ये स्मरण रखना महत्वपूर्ण होगा कि तिब्बत में लंबे समय से भारत की रुचि रही है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच अवरोध के समान है। तिब्बत से भारत के कुछ विशेष लाभ भी मिले हैं। अंततः तिब्बत पर चीन का सीधा नियंत्रण इन लाभों और भारत की सुरक्षा के खतरे में डाल सकता था। कहते हैं ये कदम बहुत ही जरूरी था जब इस चीन में नेहरू ने अपना महत्वपूर्ण कदम उठाया था। तिब्बत समस्या पर भारत द्वारा शांतिपूर्वक हल के सुझाव को चीनी साम्यवादी शासन द्वारा हस्तक्षेप माना गया था, और धीरे धीरे तिब्बत लोग चीन की पराधीनता से अधीर हो उठे, और जो कहते हैं 1959 में विद्रोह की भावना को रोक नहीं पाए, और चीन ने क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन का दमन करके तिब्बत को चीन का एक भाग घोषित भी कर दिया था। तिब्बत के मुखिया दलाई लामा ने भागकर भारत में शरण ली और अपने देश की रह रसई स्वयं खो दी। दलाई लामा को भारत द्वारा दी गई शरण को चीन ने अविश्वास के रूप में देखा। कहते हैं भारत में कोई भी दुश्मन भी अगर शरण में आता है तो भारत जो है हमेशा शरण देता है, लेकिन चीन ने इस बात को जो है अविश्वास समझा। 1950 से 53 की कोरियाई समस्या पर चीन ने भारत की निष्पक्ष एवं मध्यस्थता संबंधी भूमिका की सराहना भी की। कहते हैं 1954 की भारत चीन मैत्री संधि ने एक नया अध्याय आरंभ कर दिया था, और इस संधि द्वारा तिब्बत पर चीन के अधिपत्य को भी स्वीकार कर लिया गया था। और इस संधि की प्रस्तावना में प्रसिद्ध पंचशील सिद्धांत, जिसको हमने पिछले ही चैप्टर में किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पंचशील सिद्धांत जरूर देख लेना। उसमें 5 समझौते किए गए थे जो कि बहुत ज़रूरी था, और ये समझौता जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। कई बार पंचशील सिद्धांत एग्जाम में आ भी जाता है। इस समझौते से जो है शांतिपूर्ण संबंधों की शुरुआत तो हुई, जिन्हें हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से चिन्हित किया गया, यानी हिंदी चीनी भाई भाई जो थे ये नारे उस समय लगाए गए थे। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि बंडुगला सम्मेलन में नेहरू सक्रिय रूप से चीन के अफ्रीका एशियाई एकता में ले आए थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। देखिए, भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद सदैव लगा ही रहा है। कई न कई कारणों से भारत से जो है हमेशा चीन पंगा लेता ही रहा है, और चीन को ही मुंह की खानी हमेशा पड़ी है। कहते हैं 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से चिन्हित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्भाग्यवश दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध भी हुआ था, जो कि बहुत काफ़ी भयंकर युद्ध थी। सबसे पहले चीन ने भारतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट और फेयर्स एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख पर अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत किया था, और ऐसे मानचित्र प्रकाशित किए जिनसे उन्हें चीन के भाग प्रदर्शित भी किया गया था। और चीन हमेशा ऐसा ही प्रदर्शित करते हैं। कई हालों में भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चीन ने जो है भारत के कई पार्टों को अपने देश का पार्ट बताया भी है मानचित्रों में, जो कि सही नहीं है, और इस वजह से सदैव ही विवाद बनी रहती है। चीन ने अपनी सीमा के विस्तार को निरंतर बनाए रखा, यानी सदैव ही जो है ये अपनी सीमा के विस्तार पे लगा रहता है। कहते हैं 1956 से 57 में जो है 110 मील लंबी सड़क बनाई, जो अक्साई चीनी क्षेत्र भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर जाती थी। और 1959 में चीन ने भारतीय क्षेत्र को 51,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया था, जहां पर मैकमोहन रेखा की वैधता को भी नकार दिया था। कहते हैं चीन इस तरह के जो है अखंडे अपनाता ही रहता है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सदैव ही उसको मुंह की खानी पड़ती है। ये भी अच्छी बात है। यदि आपको लग रहा होगा कि मैकमोहन रेखा होती क्या है, तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जिसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो भूटान से पूर्व में है, और ब्रिटिश भारत चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच जो है 1914 में हुई एक गोष्ठी में इसका निर्धारण भी किया गया था। ब्रिटेन कैबिनेट में भारतीय सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन में गोष्ठी में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व भी किया गया था। तो ये आपको समझ होना चाहिए कि मैकमोहन रेखा क्या होती है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इस समय तक जो है तिब्बत चीन एक अंग बन चुका था, जो अब भारत चीन सीमा पर एक मजबूत स्थिति में था। वहाँ चारों ओर चीनी सैनिक थे। जब दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा पर विवाद चल रहा था,
तो चीन ने नेफा यानी NEFA और लद्दाख सेक्टर में अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण भी कर दिया था। कहते हैं ये आक्रमण बहुत ही दुखदायक था, जिसमें जो है चीन को जो है मुंह की खानी पड़ी थी। भारत जैसे बहुत बड़े भाग और चीन के भारत के उत्तर पूर्वी के भाग के 200 मील और लद्दाख में 15,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा जमा कर अकेले ही एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भी कर दिया था। दोनों देशों को आपसी सहयोग के लिए जो है शांतिपूर्ण समझौता कराने का एक असफल प्रयास श्रीलंका द्वारा भी किया गया था। यानी श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच जो है अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी किया गया था। कोलंबो के प्रस्ताव को चीन ने प्रस्ताव में रखी शर्तों के कारण ठुकरा दिया था और यह प्रयास विफल भी हो गया था। और युद्ध के बाद अनेक वर्ष तक चीन और भारत के संबंध में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। कहते हैं ये हमेशा ऐसा ही होता रहा है। वास्तव में चीन ने भारत को अलग करके पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ाने का रास्ता खोजा है। अगर आप वर्तमान में देखोगे तो इसका संबंध जो है पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा है, लेकिन भारत के साथ सदैव ही कुछ न कुछ गतिविधियां के वजह से जो है चीन को जो है मुंह की खानी हमेशा पड़ती है। उसके पश्चात है संबंधों का समानीकरण। देखिए, संबंधों का समानीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध जो है उतार चढ़ाव की एक सीमा के अंतर्गत आता है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध 1976 में राजदूतों के परस्पर विनिमय पर सामान्य हुए। कहते हैं कई बार राजदूत और प्रधानमंत्री के जो दौरा था, जिसके वजह संबंध काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश भी किया गया, लेकिन चीन के द्वारा गलत तरीके रूल रेगुलेशन की वजह से ये सदैव ही रिश्ता टूटते ही रहे हैं। भारत चीन संबंधों को 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 5 दिवसीय चीन यात्रा के बाद काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला था और दोनों देशों ने वार्ता द्वारा सीमा विवाद को हल करने की पेशकश भी की थी। उसके बाद कई अन्य उच्च स्तरीय यात्राएं भी शुरू हुई, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चीन यात्रा किया था और कई बातों पे हस्तक्षेप भी हुए थे। सीमा विवाद को अलग रखकर दोनों देशों ने अन्य क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध के विकास की स्वीकृति भी दी थी। जब तक कि सीमा विवाद को निपटान हो, दोनों देशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर शांति और संयम कायम रखने की सहमति भी जताई गई थी। कहते हैं ये बात तो वही रहती है, सिर्फ ये चाल थी। कहते हैं ऐसा शांति कभी भी चीन की तरफ से देखने को नहीं मिला। अब भारत के प्रति चीन के रुख में स्पष्ट अंतर आ गया है। इसका प्रमुख कारण था कि पूर्व के सोवियत संघ से चीन का संबंध बिगड़ना। कहते हैं सोवियत संघ शुरू से ही भारत का मित्र रहा है और सोवियत संघ और चीन का संबंध जो है बिगड़ गया है। इस वजह से चीन जो है अब डरता है कि कहीं भारत और सोवियत संघ मिल के चीन पर जो है आक्रमण न कर दे। इसके अतिरिक्त 1979 के बाद चीन के आर्थिक बदलाव में बड़े उत्पादन को एक बड़ी बाजार की आवश्यकता थी। ये बाजार जो था इंडिया ही दे सकता था। कहते हैं चीन के पास बहुत चीज़ें उत्पादन थी, लेकिन इस उत्पादन को बेचने के लिए एक बहुत बाजार चाहिए था, बहुत बड़ा बाजार चाहिए था। वर्तमान समय में आपने देखा भी होगा कि चाइना की बहुत सी चीज़ों को जो है भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था और इसको मुंह की खानी भी पड़ी है और कहते हैं इससे उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती ही चली जा रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनगोंग जेमिन्स की 1996 में भारत यात्रा इन मैत्री विकास के केंद्र बिंदु मानने की गवाह भी बनी थी। चीनी राष्ट्राध्यक्ष की यह सबसे पहली भारत यात्रा भी थी। नागा और मिजो विद्रोह के चीन द्वारा सहायता देना बंद भी कर देना, सिक्किम जिसे चीन का एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता था, इसे चीन के मौन रुख द्वारा एक अच्छे संकेत भी दिए हैं। यही नहीं, कश्मीर के मामलों को लेकर भी चीन ने निष्पक्ष रूप अपनाया है, जो मित्रता का सकारात्मक पहलू माना गया है। भारत के द्वारा 1998 में किए गए नाभिकीय विस्फोट के बाद दोनों देशों के संबंध में अचानक ही एक अल्पकालीन सक्रियता आ गई। इसके बाद चीन की तीखी प्रक्रिया यही आई। संयुक्त राष्ट्र और अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं ने इस प्रकार के परीक्षणों को निंदा करने के प्रस्ताव को अनुमोदन करने में चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारत के द्वारा किए गए इन परीक्षणों को इस क्षेत्र में चीन को बढ़ते प्रभाव एक आघात के रूप में देखा गया, परंतु 1999 में कश्मीर कारगिल में भारत पाक सैन्य क्षमताएं प्रदर्शन मामले में चीन के उदासीन रवैये ने चीन के भारत के प्रति नर्म मैत्रीपूर्ण रवैया को स्पष्ट कर दिया। वास्तव में इस संघर्ष में चीन द्वारा हस्तक्षेप से मना करने से पाकिस्तान को भारत से युद्ध बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2003 में चीन यात्रा दोनों पड़ोसियों के बीच घनिष्ठ और हार्दिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक नवीन प्रयास भी किया गया था और सिक्किम में नथुला पास को सीमा समझौता के अनुसार सीमा माना गया और सिक्किम को चीन अब एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता है। दोनों देशों ने सीमा विवाद को राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों के द्वारा सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और इस बात की स्वीकृति भी है कि विवादों को राजनीतिक तरीके से हल किया जा सकता है। इस वार्ताओं में देरी करने से बीजिंग के रुख को इस मुद्दे को छोड़ देने के रूप में देखा गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के उप मंत्री इस वार्ताओं को करने के लिए नियुक्त किए भी गए थे और राजनीतिज्ञ और राजनीतिक स्तर के कारण विकास पर आर्थिक दिशा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के पहल को और बल मिल गया। भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार ने जो है $10 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, भारत और चाइना। देखिए, भारत जो है सदैव ही मैत्रीपूर्ण संबंध हर एक देश के साथ करना चाहता है, लेकिन चीन जो है समय समय पे भारत को तकलीफ देता रहता है, कभी सीमा विवाद में तो कभी सीमा बढ़ाने के विवाद में। कुछ दिन पहले ही से जो है भारत और चीन में जो है युद्ध की एक कड़ी देखने को मिला, जब वहाँ पर जो है आपस में ही कुछ जो है सिपाही लड़ने लग गए थे। तो ये हमेशा जो है चाइना भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है।